Hello everyone. In the last video, we started the topic Venn diagram technique and we discussed about how can we draw Venn diagram for universal propositions. Today, we will learn that how can we draw Venn diagram for particular propositions or the mixture of both premises, universal and particular. Lastly, we discussed that for universal proposition, we have to shade the circle or a particular area. So today, rule for particular propositions. Particular propositions are diagrammed by placing X rather than by shading. पर्टिकुलर प्रपोजिशन में हम x प्लेस करते हैं. नाउ देयर आर सम रूल्स फॉर प्लेसमेंट ऑफ द x. If the argument contain one of the universal proposition, then they should be diagrammed first, after that placing an x. If you have two type of propositions, one is universal and second is particular, तो आपको क्या करना है? You have to draw first universal proposition, then you have to draw particular proposition. If both premises are universal, then you can make diagram first for any premises. If both premises are universal and conclusion is particular, then doesn't matter, you can draw any one of premises of these two major premises and minor premises. If one part of the circle has been shaded, then place X in an unshaded part of the circle. You can see here in this diagram, this part is shaded. Suppose we take this circle. So you can see in this circle, the half part is shaded. So you have to place X in unshaded part if you got any situation like this. Second, when one part of circle has not been shaded, then place X on the line which separating two parts of the circle. You can see in this diagram there is no shaded part. So if you have to place X in this circle, so you have to place here in the middle. एंड अगर इस सर्कल में प्लेस करना है तो आप यहाँ करेंगे. सो बेसिकली द पॉइंट इज, अगर कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है, सो एक्स आपको लाइन में प्लेस करना है. दीज आर सम रूल्स फॉर वेन डायग्राम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस. अब ये रूल्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे. सी द एग्जाम्पल. सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स. दिस इज आई प्रपोजिशन. All girls are teachers. A proposition. Therefore, some teachers are coffee lover. I proposition. So, make the diagram. Girls middle term है. Coffee lover major term. Teachers minor term. तो ये हमने बना लिया. Minor term, major term and middle term. Now, according to rule, there are two propositions and one is universal and second is particular. So, you should draw first universal. All girls are teacher. So, girls are teacher. So, look at the two circle. First one is girl, second is teacher and it is a proposition. So, आपको याद होगा मैंने पहले की वीडियो में बताया था, जब भी a proposition हमको ड्रॉ करनी होती है तो हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं. सो सिमिलरली सर्कल 1 का हमने ये पार्ट ड्रॉ कर दिया. देन सेकेंड प्रपोजिशन, सम गर्ल्स आर कॉफी लवर. अब आपको ये देखना है गर्ल्स का सर्कल एंड कॉफी लवर का सर्कल. ये दो सर्कल हैं और ये आई प्रपोजिशन है और आई में हम एक्स प्लेस करते थे हेयर. ठीक है, मिडिल में. अब आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, द हाफ पार्ट इज शेडेड. द हाफ पार्ट इज शेडेड का मतलब है कि आपको एक्स अनशेडेड पार्ट में प्लेस करना है. क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज
As I said before, shaded part is showing that this part is empty. There is no member. कोई भी मेंबर नहीं है, इसलिए हम x को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते. हम हमेशा x को अनशेडेड पार्ट में ही प्लेस करेंगे. Now conclusion. Some teachers are coffee lovers. तो some teachers and coffee lovers, ये हमारे दो सर्कल हैं and it is I proposition. तो we have to place x in a common area. Now there is an important point, because this is common area, so you can place x in this part and in the middle also and this part also. तो ये पूरा common area है, आप यहाँ पे कहीं भी x place कर सकते हैं. So now tally the board diagram. The conclusion is middle part में क्या है, एक्स प्लेस है. उसी तरह प्रेमिसेस में भी मिडिल पार्ट में एक्स प्लेस है कॉमन पार्ट में. तो दिस आर्ग्यूमेंट इज वैलिड बिकॉज इट्स शोइंग दैट कंक्लूजन इज इनहेरेंटली इन द प्रेमिसेस और conclusion is already present in the premises. This is explanation of this sum. To represent this proposition, we place an x in the area of girl circle, जैसा कि मैंने आपको बताया, and overlap with coffee lovers circle. Then we place x in the unshaded area because shaded part shows that there is nothing in that area or it is empty. After tally board diagram, you will find that argument is valid because conclusion is contained in the premises. तो ये आप यहाँ से tally कर सकते हैं. So don't be confused about the place of x कि ये middle line में है, यहाँ पे lower part में है, तो ये invalid हो जाएगा. No, tally करते वक्त हम सिर्फ ये पूरा portion as a whole tally करते हैं. यहाँ पे कहीं भी x lie कर रहा है वो इसके समान ही होगा. ठीक है, ये दोनों पोर्शन इक्वली माने जाएंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट, ए प्रपोजिशन. सम मैजिशियंस आर आर्टिस्ट, आई प्रपोजिशन. फॉर सम मैजिशियंस आर, सॉरी देयरफॉर आएगा यहाँ पे, देयरफॉर some magician are painter, I proposition. So artist is middle term, painter major term, magician minor term. ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं. अब हम इसको ड्रॉ करते हैं. तो अगेन एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है. सो ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट. लुक एट द सर्कल्स, पेंटर्स एंड आर्टिस्ट. हमने क्या किया है, हमने ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया है बिकॉज इट इज ए प्रपोजिशन. देन सम मैजिशियंस आर आर्टिस्ट, सम मैजिशियन दिस सर्कल एंड आर्टिस्ट दिस सर्कल. सो वी हैव टू प्लेस एक्स. तो जैसा कि मैंने कहा कि लाइन में करते हैं तो बेस्ट है कि आप लाइन में ही पुट कीजिए. हालांकि यहाँ करना भी कई लोग जस्टिफाई करते हैं कि हाँ यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी, बट कोई रिस्क ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो बेस्ट है कि आप लाइन में पुट करें. देन कंक्लूजन. सम मैजिशियंस आर पेंटर, मैजिशियंस एंड पेंटर. तो हमने देखा है ये मिडिल पार्ट है एंड ये आई प्रपोजिशन है. सो हमने प्लेस किया एक्स इन द लाइन. So in the premises, x dangle on the line between the class artist and painter. Artist and painter. Here it is not clear that whether x is inside or outside the class of painter. कि ये उसके अंदर है या उसके बाहर है. So for that reason the argument is invalid because conclusion shows clearly that magicians are painter. यहाँ आप देख सकते हैं इसका मतलब है कि ये कॉमन क्लास है कि देयर आर मेंबर हु आर मैजिशियन एंड ऑल्सो पेंटर. बट ये जो एक्स है वो ये शो नहीं कर रहा है, ये बिटवीन लाइन है या लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये क्लियरिटी नहीं है कि ये पेंटर क्लास में है या ये मैजिशियन क्लास में है. अब आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं
एक एग्जाम्पल, मान लो आपको एक्सरसाइज ऐसे दी है AOO इन सेकेंड फिगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिगर लिख लेते हैं। सेकेंड फिगर मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, मूड एंड फिगर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, फिगर्स क्या हैं। ये है सेकेंड फिगर। इसको लिखने का तरीका बेस्ट ये है, सबसे पहले फिगर लिख लीजिए, उसके बाद ये है आपका मूड, AOO। A means all, P is M, some, S is not, M, some, S is not, P। ये हमारा एक सिलोजिज्म बन गया, आर्ग्यूमेंट बन गया, जिसमें दो प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन है। नाउ ड्रॉ द प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन बाय वेन डायग्राम। ये हमने 3 ओवरलैपिंग सर्कल बनाए, one for premises and one for conclusion. This is for premises and this is for conclusion. So this is middle term, this for minor, major. Similarly इधर भी लिख लेंगे। Okay, now see the premises. One is universal, one is particular. So first we draw universal proposition. All P is M. So look at the P circle and M. It is a proposition, so we will draw this part. And then O proposition. Sum S is not M. S and M ये पार्ट देखना है, और आपको याद होगा कि O प्रपोजिशन में X हम इस पार्ट पे प्लेस करते थे, तो हम यहाँ भी यही करेंगे। ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है, और X शुड बी प्लेस हियर। नाउ कंक्लूजन। कंक्लूजन S इज नॉट P, S 1 एंड सेकेंड, S इज नॉट P, ये दो सर्कल हैं। और क्योंकि आप देख रहे हैं ये हमें इस पार्ट में X प्लेस करना है और X पार्ट में हमारी लाइन है, यानी ये पार्ट दो पार्ट में, सब पार्ट में डिवाइडेड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू ड्रॉ हियर। नाउ टेली द बोर्ड डायग्राम। आप देखिए बोर्ड डायग्राम जब आप टैली करेंगे तो आप क्या फाइंड कर रहे हो कि इस पूरे सर्कल में X लाई कर रहा है एंड इधर भी X लाई कर रहा है, ये पूरा सर्कल। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड हो गया, क्योंकि कंक्लूजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस। एक और सम हम देखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होता है और जितना ज़्यादा हमको वैरायटी मिलती है, क्लियरिटी उतना ज़्यादा आती है। अब देखिए फिगर सेम है, लेकिन हमारा मूड सेम है, फिगर चेंज हो गया। वो सेकंड था, ये फर्स्ट है। तो हम पहले फर्स्ट फिगर लिख लेते हैं, MP SM and SP। Again all M is P, some S is not M, some S is not P। ड्रॉ करते हैं premises, conclusion, माइनर टर्म, मेजर टर्म, मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सेम कंडीशन है। ए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, तो ए में अब क्या है, हमारा डायग्राम बदल जाएगा क्योंकि हमारी टर्म्स बदल गई। यहाँ पे आ गया MP, तो फर्स्ट सर्कल M, सेकेंड P, so this part will be shaded because it is a proposition. Now second, S is not M, first circle, second circle, and this is O proposition. So you have to draw X in this part, but again this part is divided into two subparts, so you have to place X in the line.
कंक्लूजन, सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, ये रहे आपके दो सर्कल। अब आपको यहाँ प्लेस करना है तो सिमिलरली आप यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ लुक एट द बोर्ड डायग्राम। दिस इज इनवैलिड बिकॉज in the conclusion x is placed in this part, you can see in this part, but in the premises it is placed in this line. Here it is not clear कि x is a part of this part and x is a part of this part also, so it is invalid. तो ये आपका पूरा दो वीडियो में मैंने टॉपिक कवर किया है। पहले वीडियो में यूनिवर्सल प्रपोजिशन के वेन डायग्राम है और सेकंड में पर्टिकुलर। थैंक यू सो मच।